तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए फॉरवर्ड रेट समझने के लिए। सपोज an investment is made for 2 years, comma, ROI is 25% and if investment is made for 3 years, ROI is 25.66%। यानी 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 25% और 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो होगा 25.66%। विथ पैराग्राफ राइट डाउन, कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन, मैच्योरिटी अमाउंट of rupees 100, comma, at the end of year 2. Second, maturity amount of rupees 100 at the end of year 3. Third question, forward rate for 3rd year। ऐसे 3 क्वेश्चन है। यानी अगर हमने आज इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपए का 2 साल के लिए तो 2 साल के बाद मैच्योरिटी क्या होगा। अगर हमने आज इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपए का 3 साल के लिए तो 3 साल के बाद मैच्योरिटी क्या होगा, और 3rd ईयर का फॉरवर्ड रेट क्या है, दैट इज अ क्वेश्चन। ऐसा करके यहाँ पे 3 सिंपल क्वेश्चन है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गिव आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन, फिर मैं आपको 3rd क्वेश्चन समझाता हूँ। So let us calculate answer for the first question. Calculation of maturity amount of deposit, comma, at the end of year 2। कैसे किया जाएगा, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू 2। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25% और टाइम पीरियड कितना है 2 साल। सो विल मेक द कैलकुलेशन लाइक दिस, 1.25 इंटू 1.25, so 1.5625, so it is 100 into 1.5625, so 156.25। दैट इज द वे मैच्योरिटी 2 साल के बाद का कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज calculation of maturity at the end of year 3। उसको भी कुछ वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू n
100 रुपये इंटू 1.2566 रेज टू 3. So 1.2566 raised to 3. So it comes to 1.9842. So 198.42. ये कब का हुआ? ईयर 2 एंड का हुआ. और ये कब का हुआ? ये ईयर 3 एंड का हो गया. ऐसा करके हमको दोनों का मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट कैलकुलेट करना है. ना क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, व्हाट इज द फॉरवर्ड रेट फॉर द थर्ड ईयर, दैट इज अ क्वेश्चन. ना उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको समझाता हूं. एकदम लॉजिकल वर्किंग है. इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन थियरम. We understand it is like this. See, this is year 0, and if at all we invest an amount for 2 years, so that amount after 2 years becomes 156.25. And if at all we invest the same amount today for a time period of 3 years, then in that case the maturity amount of the deposit is more than that. It is 198.42. हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको थर्ड ईयर का फॉरवर्ड रेट फाइंड करना है. इसका मतलब क्या? Let's say what must be the rate of interest that would be prevailing at the beginning of the third year for third year investment. तो उसके लिए सिंपल लॉजिक ऐसा है that whatever the amount that I receive at the end of the second year, I will reinvest the same for one more year. And what would be the rate at which I would be getting the maturity amount of the deposit if I would have invested the funds directly for 3 years? I repeat that again. ये 100 रुपये मैंने 2 साल के लिए लगाए, तो मुझे जो पैसा मिलेगा उसको मैं और 1 साल के लिए री इन्वेस्ट करूंगा. And I get the same amount if at all I would have invested the funds directly for 3 years. That is the way forward rate for the third year will be calculated. So F3 will be calculated as 1.2566. I'm sorry. $100 into this. So what happens? I'll say the maturity amount of the deposit is same if I would have invested the funds directly for 3 years. ये logic से we make the calculation of the F3. So what will happen? We understand that say this 100 rupees and this 100 rupees will be cancelled against one another. That is the amount of investment. So 1 plus F3 is equal to 1.2566 raised to 3 divided by 1.25 raised to 2. So F3 is equal to 1.2566 raised to 3 divided by 1.25 raised to 2. और जो भी आंसर है उसमें से हम लोग क्या करेंगे? 1 को डिडक्ट करेंगे. ऐसा करके हमको फॉरवर्ड रेट थर्ड ईयर का फाइंड करना है. So we understand that, so we'll make the calculation like this. 1.9842 divided by 1.5625. जो भी आंसर आता है उसमें से एक को डिडक्ट करेंगे. So 1.2699 minus 1, that is 26.99%. इसको एक्सपेक्टेशन थियरम बोला जाता है.
तो इसका एक मैं नोट लिखवा देता हूं आपको। फॉरवर्ड रेट for third year is calculated taking into account spot rate for second year and third year, full stop. Rate at which maturity amount of second year is reinvested for one more year and it will have same maturity, comma, as if investment is made directly for 3 years, full stop. तो हम लोग ऐसा कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं। वन प्लस स्पॉट फॉर द सेकेंड ईयर रेज टू 2 into 1 plus forward for the third year raised to 1 is equal to 1 plus spot for the third year raised to 3। ऐसा हम लोग बना सकते हैं फॉर्मूला ना, जैसे F3 का बना है वैसे हम लोग कोई भी ईयर का फॉरवर्ड रेट का कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। वी अंडरस्टैंड दैट से दिस यू हैव टू टेक 1 year preceding, this you have to take for that year itself, और इसको बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया जा सकता है। Let us start with the next question, dear students. The following details are related to the borrowing requirement of two companies. One is ABC Limited and another is DEF Limited. ABC Limited has a requirement of the fixed rupee rate. DEF का requirement है floating rupee rate. Like that, so the information is given to us. रेट क्या ऑफर किया गया है वो हमको दे रखा है। फिक्स का है 4.5 जो रेलेवेंट है हमारे लिए, और फ्लोटिंग का है प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 3% जो अगेन हमारे लिए रेलेवेंट है। बोथ द कंपनीज आर इन नीड ऑफ 250 lakhs of rupees, that is 2.5 crore for a period of 4 years. The interest rate on the floating rates are reset annually, यानी PLR हर साल चेंज होगा। The current PLR for the various maturities periods are as follows. Current PLR for the various maturities, इसका मतलब है ये स्पॉट रेट दे रखा है हमको। स्पॉट रेट 1 साल का, स्पॉट रेट 2 साल का, स्पॉट रेट 3 साल का और स्पॉट रेट 4 साल का, ऐसा हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है। DEF लिमिटेड यानी कि जो कंपनी ने फ्लोटिंग रेट से बोरो किया है, हैज बॉट एन इंटरेस्ट रेट कैप एट 5.625%। तो ये एक्सरसाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। एट एन अपफ्रंट प्रीमियम पेमेंट, प्रीमियम पे करके उन्होंने ये बाय किया है, अपफ्रंट पे किया उन्होंने। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जिबिट
how these two companies can reduce their borrowing cost by adopting, highlight the portion, swap, assuming that the gain resulting from the swap shall be shared equally by them, that is paid between them. अच्छा है क्लैरिफिकेशन दे रखा है, अदरवाइज यूजुअली जब भी क्लैरिफिकेशन नहीं है तो हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं डेट से दोनों को इक्वल एडवांटेज मिलेगा. Further calculate the cost of funding to these two companies assuming that expectation theory का मतलब क्या होता है, ये जो फॉरवर्ड रेट का भी हमने कैलकुलेशन समझा, assuming that the expectation theory holds good, that is a question. I request all of you to go through the question, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं उसको कैसे करने का. सिर्फ गो थ्रू कीजिए क्वेश्चन को. I request all of you to do answer of the swap transaction and tell me that say ABC का final funding cost क्या होगा और DEF का क्या होगा. Put your answer in the chat box. पूरा टेबल बनाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइनल कॉस्ट क्या होगा वो कैलकुलेट करके मेरे को बताओ, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन समझाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में और एक एडिशनल पॉइंट भी यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. I request all of you to write an answer along with me. I am very sure that when you will write the answer, you will definitely come to know कि कैसे करना है. ABC लिमिटेड को क्या चाहिए, फिक्स रेट का फंडिंग चाहिए. DEF को क्या चाहिए, फ्लोटिंग रेट का फंडिंग चाहिए. तो राइट एन आंसर. Step number 1, calculation of total cost, comma, if both the companies borrow independently, यानी दोनों कंपनी ने अगर अपने हिसाब से बोरो किया है तो क्या होगा वो हम मैं सबसे पहले लिख रहा हूं. ABC और DEF इंटरेस्ट, ABC का होगा 4.5 और DEF का होगा PLR + 3. सो कुल मिला के इंटरेस्ट का खर्चा हो जाएगा PLR + 7.5. That is our step number 1, calculation of the total cost if both the companies borrow independently. फिर क्या बोलेंगे भाई नहीं ऐसा मत करो, we will suggest you something, you borrow like that. That is what say we will answer. So step number 2, in that say we will mention both the companies will be advised to borrow differently. क्या बोलेंगे दोनों कंपनी को, that say you borrow differently. It is ABC and it is DEF. ABC को क्या बोलेंगे, इंस्टेड ऑफ फिक्स यू बोरो एट फ्लोटिंग, यानी प्राइम लर्निंग रेट ऑफ इंटरेस्ट +2. DEF को क्या बोलेंगे, यू बोरो एट फिक्स, यानी क्या होगा 5. सो व्हाट विल हैपन, वी अंडरस्टैंड दैट से व्हेन दे बोरो लाइक दिस देन देयर इज टोटल इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ P + 7. सो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व दैट से अगर वो लोग ऐसा बोरो करते हैं then in that case they will be able to reduce the interest cost. P तो common ही रहेगा, however we understand that say we will be able to reduce say the interest of 7.5 to 7. That is the way we will get advantage of 0.5%. दोनों कंपनी को एडवांटेज इक्वली शेयर करना है. So we understand that say step number 3, in that write down, if both the companies borrow differently, comma,
In that case, there will be a savings of interest by 0.5%. Full stop. So both the companies will be able to reduce interest cost by 0.25%. कैसे है 0.25%? 0.5% divided by 2. Hence, finally interest cost will be as under. तो फाइनली इंटरेस्ट का खर्चा क्या होगा? ये जो 4.5 है उसमें से 0.25 निकाल दो. सो एबीसी का है 4.25 और यहाँ पे 3 में से 0.25 निकाल दो. डीईएफ में P plus 2.75. That is the way these two companies will have the interest cost. Now आगे कैसे आंसर करना है वो मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ. देखो, जिन्होंने फिक्स पे बोरो किया है उनका तो कुछ भी हो जाए, फ्लोटिंग में चेंज, उनका खर्चा तो फिक्स ही रहने वाला है. जिन्होंने फ्लोटिंग पे बोरो किया है उनका खर्चा चेंज होगा. क्वेश्चन में हमको एक इंफॉर्मेशन ऐसे दे रखा है that say what is the anticipated rate with respect to the floating rate of interest. यानी ये प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में वो दे रखा है. कैसे कैलकुलेट करने का वो मैं आपको समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे रैंडम फिगर्स ले रहा हूँ. ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है. सो वी अंडरस्टैंड दैट से डीईएफ के लिए टोटल खर्चा क्या हुआ 2.75 प्लस 2 यानी 4.75. 2.75 प्लस 3 यानी क्या हुआ 5.75. 2.75 प्लस 4 यानी क्या हुआ 6.75. 2.75 प्लस 5 यानी क्या हुआ 7.75. यानी कि वी अंडरस्टैंड दैट से जो भी हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके हिसाब से ये हमारा टोटल खर्चा होगा. दैट इज द रीजन हमने क्या किया है, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द डीईएफ लिमिटेड. उन्होंने कैप ऑप्शन बाय किया. कौन से रेट के ऊपर? 5.625% के ऊपर प्रीमियम पे करके. कितना प्रीमियम पे किया है वो हमको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है. सो वी आर इग्नोरिंग दैट इंफॉर्मेशन जो नहीं दे रखा है. देखो 5.625 को इसके साथ कंपेयर किया जाएगा. यानी क्या होगा कि मुझे एक्सेस इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने पे ही नहीं किया है. तो मेरा खर्चा क्या हुआ 4.75. यहाँ पे मेरा खर्चा क्या होगा 5.625 क्योंकि ऊपर का इंटरेस्ट मेरे को मिल जाएगा. यहाँ पे क्या होगा 5.625. यहाँ पे क्या होगा 5.625. ऐसा करके हमको कैलकुलेट करना है कि एक्चुअली डीईएफ लिमिटेड का ये कंपनी का खर्चा क्या होगा ऑन द ईयरली बेसिस. उसके बाद क्वेश्चन में हमको ऐसा पूछा है, रीड लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फंडिंग टू दीज टू कंपनीज अज्यूमिंग द एक्सपेक्टेशन थ्योरी होल्ड्स गुड. सो वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फंडिंग लाइक दिस. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द कॉस्ट ऑन द ईयरली बेसिस. तो हमको उसको पर एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे किया जाएगा? अंडरस्टैंड केयरफुली. 1 प्लस आर रेज टू 4 इज इक्वल टू 1.0475 इंटू 1.05625 इंटू 1.05625 इंटू
1.05625। तो हमारे पास हमारा ईयरली खर्चा क्या होगा बोरोइंग का, उसका आंसर आ जाएगा। मैं सीक्वेंस रिपीट करता हूं। एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस इन विच वी हैव टू डू आंसर। क्या कैलकुलेट करना है और कौन से सीक्वेंस में, वो दोनों चीज में रिपीट कर रहा हूं। हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है। किसका? प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का। यानी कि फर्स्ट ईयर का तो प्राइम लेंडिंग रेट हमको क्वेश्चन में दे रखा है। सेकेंड ईयर में पीएलआर क्या होगा, थर्ड ईयर में पीएलआर क्या होगा, फोर्थ ईयर में पीएलआर क्या होगा, वो हमको कैलकुलेट करने का है। सपोज ये आता है पीएलआर, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग 2.75 ऐड करेंगे, तो ये हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.625 के ऊपर जाएगा तो ऊपर का ब्याज हमको मिल जाएगा। यानी हमारा खर्चा 5.625 पे डिस्ट्रिक्ट रहेगा, हमारा खर्चा 5.625 पे डिस्ट्रिक्ट रहेगा, हमारा खर्चा 5.625 पे डिस्ट्रिक्ट रहेगा। हमारा ये खर्चा जो है 5.625 के नीचे है, वही खर्चा रहेगा। That is the way we are required to make the computation of the expenses on the yearly basis. Language of the question is very clear कि हमको, that is हमने ये कैप ऑप्शन बाय किया है by making payment of the premium। कितना प्रीमियम नहीं दे रखा है, जाने दो उसको। ये जो हमारा ईयरली कॉस्ट आया, फिर उसका हमको क्या करना है, ऑन एनुअली कंपोनेंट बेसिस वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट। जो कंपनी ने फिक्स पे बोरो किया है उसका खर्चा तो 4.25 ही रहेगा। सो लेट अस आंसर द क्वेश्चन। इन केस ऑफ ABC Limited, cost of borrowing will be 4.25% per annum, full stop। ABC Limited is not concerned for fluctuation of floating rate of interest। With paragraph write down, DEF Limited has borrowed at floating rate of interest, full stop। DEF Limited will pay interest at PLR plus 2.75, however subject to maximum 5.625%। उससे मैं लिखो आगे, DEF Limited has purchased interest rate cap option, full stop। Premium is paid upfront, no information is given about it
so it is ignored in our calculation. Full stop. Now done with paragraph. Current PLR for various period maturities mean spot rates. Full stop. Now heading right down, calculation of annual interest cost for DEF Limited. First year, second year, third year and fourth year. PLR plus 2.75. And actual interest cost. PLR plus 2.75 5.625 से ज़्यादा है, जो एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट 5.625 हो जाएगा, और अगर PLR प्लस 2.75 5.625 से कम है तो वो हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाएगा. अभी फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है. इट इज 2.75 प्लस 2.75, क्योंकि पहले साल का जो स्पॉट रेट होता है वही का वही फॉरवर्ड रेट होता है 2.75. सो दैट कम्स टू 5.50. तो हमारा खर्चा क्या होगा 5.50. दूसरे साल का कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाने का है आपको. इट इज 1.03 रेज टू 2 डिवाइडेड बाय 1.0275. जो भी आंसर आएगा उसमें से एक को डिडक्ट करेंगे. ये जो आंसर आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे 2.75 को ऐड करेंगे. That is the way we are required to compute first of all the PLR for the second year. उसमें 2.75 को ऐड किया जाएगा. ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5.625 से कंपेयर किया जाएगा. दोनों में से जो कम है उसको एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट गिना जाएगा. Try to do the for the third and fourth year on your own. चलो let us see second year का 1.03 into 1.03, so 1.0609 divided by 1.0275. minus 1 into 100, of course, to get the answer in percentage sum. So 3.2506 plus 2.75, that comes to 6%. 6% is more than 5.625. तो हमारा खर्चा क्या होगा 5.625 से ज़्यादा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जो भी ऊपर का इंटरेस्ट होगा ना वो कैप सेलर हमको कंपनसेट कर देगा. अभी थर्ड ईयर का स्टोरी करते हैं. थर्ड ईयर का हमको स्पॉट रेट क्या दे रखा है क्वेश्चन में. थर्ड ईयर का स्पॉट रेट है 3.20. तो कैसे किया जाएगा फ्रेंड्स 1.032 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय सेकेंड ईयर का स्पॉट रेट क्या है 1.03 रेज टू 2. ये जो भी आंसर आएगा उसमें से क्या करेंगे एक को डिडक्ट करेंगे. जो भी आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2.75. दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू डू आंसर.
So 3.6011 plus 2.75. That comes to 6.3511. So 32. 6.3512, I'm sorry. Which is again exceeding 5.625. तो हमारा खर्चा क्या हो जाएगा? 5.625. For the fourth year, 3.375. 1.0, 3.375. Raised to 4 divided by 1.032 raised to 3. जो भी आंसर है उसमें से एक को डिडक्ट करो, जो भी आंसर आएगा उसमें 2.75 को ऐड करो. So 3.90 आ रहा है for that is PLR plus 2.75. So 6.6518. Again it is exceeding 5.625. तो हम लोग क्या करेंगे? We will consider the interest cost as 5.6250. So this is basically the use of the forward rate. We understand that say base that is taking into account the forward rate. हमको ये पता चल सकता है, हम लोग ये anticipate कर सकते हैं कि हमारा खर्चा क्या होगा. तो what happens that say this will help us say to take a decision with respect to entering into the interest rate cap option. Now after making this calculation, अभी हम लोग effective rate find करेंगे. See, the language of the question is like this. You are required to exhibit how these two companies can reduce the borrowing cost by adopting the swap. वो हमने कर दिया. Gain resulting from the swap shall be shared equally. वो भी हमने कर दिया. Further calculate the cost of funding to these two companies assuming the expectation theory holds good. यानी ये जो हमारा like spot rates का anticipate that is स्पॉट रेट के ऊपर से हम लोग फॉरवर्ड रेट एंटिसिपेट कर रहे हैं वो सही है, तो क्या होगा कॉस्ट वो हमको कैलकुलेट करना है. सो वी अंडरस्टैंड दैट सो द फाइनल आंसर वुड बी लाइक दिस. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फंडिंग टू DEF लिमिटेड इन एनुअलाइज्ड टर्म. तो कैसे किया जाएगा? 1 प्लस आर रेज टू 4, क्योंकि 4 साल है, इज इक्वल टू 1.055 इंटू 1.05625 फॉर 3 टाइम्स. सो रेज टू 3. हम लोग ऐसा कर सकते हैं. अलग अलग है तो फिर अलग अलग लिखना पड़ेगा, अदरवाइज तो रेज टू 3 कर सकते हैं. हमारे पहले साल का इंटरेस्ट का खर्चा 5.5 है, दूसरे साल का 5.625 है, तीसरे साल का 5.625 है, चौथे साल का अगेन 5.625 है. तो हमारा ईयरली खर्चा क्या हुआ वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. सो वी आर कैलकुलेटिंग अ सिंगल रेट एट विच वी हैव बोरोड द फंड्स. सो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1.055 into 1.05625 raised to 3 whole raised to 1/4. So R will be calculated like this. 1.05625 एक साल, 1.05625 2 साल, 1.05625 3 साल into 1.055 4 साल. So that comes to 1.2432 raised to 1/4.
सो इट कम्स टू -1 करेंगे 1.0559 तो 56 कर देते हैं। सो 0.056 दैट इज 5.60%। ऐसा करके हमको रेट फाइंड करना है। सो दिस इज द वे वी मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट दैट वी विल हैव फॉर DEF लिमिटेड। तो ये पूरा वर्किंग करने के बाद अगर हमको पूछा है तो हम लोग ऐसा एडवाइस कर सकते हैं DEF लिमिटेड को कि हमारा जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से आपका ईयरली खर्चा होगा 5.6। आपने स्वैप किया, आपने इंटरेस्ट रेट कैप बाय किया एंड अल्टीमेटली यू विल बी हैविंग अ कॉस्ट ऑफ 5.6 एक्सक्लूडिंग द प्रीमियम विच यू आर रिक्वायर्ड टू पे फॉर स्वैप ट्रांजैक्शन, सॉरी फॉर इंटरेस्ट रेट कैप ट्रांजैक्शन। उससे बेहतर ये है, अगर हमको पूछा तो हम लोग बता सकते हैं कि अगर आप फिक्स पे बोरो करोगे ना, देन इन दैट केस आपका खर्चा क्या होगा, आपका खर्चा सिर्फ 5% होगा। तो इट इज बेटर टू बोरो एट द फिक्स रेट फॉर यू, कंसीडरिंग दैट से दीज एक्सपेक्टेशंस प्रूव टू बी करेक्ट। ये हमने जो एंटिसिपेट किया ऐसा नहीं भी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट नीचे भी जा सकते हैं एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का बोरोइंग है वो सस्ता हो जाए। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कंसीडरिंग दिस एक्सपेक्टेशन, इट इज बेटर टू बोरो एट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर DEF लिमिटेड ऑल्सो। लेट अस हैव द समरी ऑफ द एंटायर आंसर। पूरे आंसर में हमको शुरुआत करना है जो बहुत ही सिंपल पॉइंट हो गया अभी हमारे लिए, बिकॉज वी हैव डन नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर दैट। सो दैट इज द स्वैप ट्रांजैक्शन। स्वैप में इंटरचेंज होता है, फिक्स चाहिए तो फ्लोटिंग पे लो, फ्लोटिंग चाहिए तो फिक्स पे लो, दैट इज व्हाट से सिंपल। तो वो हमने करके सबसे पहले कैलकुलेट किया कि दोनों कंपनी का इंटरेस्ट का खर्चा क्या होगा। ABC का 4.25% और DEF का 2.71। सो दैट इज अ सिंपल पॉइंट। सेकेंड पॉइंट से मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्किंग शुरू हो जाता है। हमको यहाँ पे स्पॉट रेट्स दे रखा है फॉर PLR, उसके ऊपर से हमको क्या करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द फॉरवर्ड रेट फॉर द PLR। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द फॉरवर्ड रेट फॉर द PLR। दिस इज द फॉरवर्ड रेट फॉर PLR। अगेन फॉरवर्ड रेट फॉर द PLR। ऐसा करके हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, हमारा टोटल इंटरेस्ट का खर्चा क्या होगा फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, फॉर थर्ड ईयर, फॉर फोर्थ ईयर। जिस हिसाब से हम लोग एंटिसिपेशन कर रहे हैं उस हिसाब से खर्चा क्या होगा वो हमने कैलकुलेट किया। ये जो एक्सपेंस है उसको हमने 5.625 से कंपेयर किया। दोनों में से जो कम होगा उसको हमने सिलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा समझते हैं कि जो भी 5.625 के ऊपर का इंटरेस्ट का खर्चा है वो कंपनसेट हो जाएगा। द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई टोल्ड यू इवन अर्लियर कि इंस्टीट्यूट कई बार क्या करता है, ये जो 5.625 है ना, सिर्फ उसको फ्लोटिंग के साथ कंपेयर करता है। जैसे कि हमारे ये एग्जांपल में फ्लोटिंग का रेट है 3.25 और 2.75 का लोडिंग है। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। सो व्हाट हैपेंस एट द इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग द सजेस्टेड आंसर, जिसमें इसको वो लोग सिर्फ 3.25 के साथ कंपेयर करते हैं। ये क्वेश्चन में उन्होंने ये 5.625 को टोटल के साथ कंपेयर किया एंड ऑफ कोर्स वो बिल्कुल ही लॉजिकल है। दैट इज द वे दे हैव डन आंसर। तो इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में इस हिसाब से इनकंसिस्टेंसी रहता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। जब भी आप एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस कर रहे हो, सजेस्टेड आंसर्स कर रहे हो, रिविजनरी टेस्ट पेपर कर रहे हो, देन इन दैट केस यू जस्ट हैव टू वेरीफाई व्हाट काइंड ऑफ अजम्पशन दैट से दे हैव मेड। दोनों में से जो कम होगा वो हमारा इफेक्टिवली खर्चा होगा। एंड देन वी हैव कंप्यूटेड दैट से व्हाट इज द एनुअलाइज्ड कॉस्ट, यानी हमारा ओवर द टाइम पीरियड ऑफ द 4 इयर्स इतना खर्चा हुआ है
तो ईयरली खर्चा क्या है? अगेन फ्रेंड्स, यहाँ पर रेस टू 4 होने की वजह से आंसर का कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाता है. इफ इट इज अदर देन 4, लेट अस से 5 है, लेट अस से 3 है, तो अगेन यू हैव टू गो विद द ट्रायल एंड एरर मेथड फॉर डूइंग आंसर. So this is what, these are the important points.